بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر علی عمار۔ آج ہم جو ہے وہ سیکنڈ لیکچر میں واٹر سپلائی اینڈ ویسٹ واٹر مینجمنٹ کے بات کریں گے واٹر کوالٹی کے اوپر، واٹر کوالٹی پیرامیٹرز کے اوپر۔ تو واٹر کی جو کوالٹی ہے اس کو انشور کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ واٹر کو ہم نے یوز کرنا ہے ڈفرینٹ ڈومیسٹک اینڈ انڈسٹریل پرپسز کے لیے۔ تو ہر واٹر یوزیج کے لیے اس کے کوالٹی پیرامیٹرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ پینے کے لیے خاص کر کے جو ہے نا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے واٹر کوالٹی، کیونکہ ڈرنکنگ جو ہے وہ ایک بیسک نیسیسٹی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے واٹر کی کوالٹی کو مینٹین کرنا ہے، انشور کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے ڈفرینٹ پیرامیٹرز جن کی بیس پہ ہم واٹر کوالٹی کو جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ واٹر کوالٹی ہے کیا چیز۔ واٹر کین بی براٹ انٹو ڈفرینٹ یوزز۔ ہم جانتے ہیں کہ پانی کے جو ہے مختلف استعمال ہیں، ٹھیک ہے، کچھ انڈسٹریل یوزز ہیں، میونسپل یوزز ہیں، ڈومیسٹک جنہیں ہم بولتے ہیں، اس کے علاوہ ریکریشنل یوز کے لیے جیسے سوئمنگ پول ہیں، بوٹنگ فیسلٹیز ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے کوالٹی جو ہے ہم نے دیکھنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فشریز جو لوگ ہیں یا اسپورٹس یعنی واٹر اسپورٹس کے ریلیٹڈ جس طرح فش فارمز بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈفرینٹ یعنی جگہوں پہ سالس سمندروں میں فشریز کے لیے انہوں نے جگہیں جو ہے مختص کی ہوئی ہیں، یا ہم نے علیحدہ سے جو فش فارمز بنائے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ بھی واٹر کے کوالٹی پیرامیٹرس کو جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایگریکلچرل یوز آف واٹر ہے تو اس کے لیے بھی پانی کے خاص قسم کی یعنی کوالٹی اور پیرامیٹرس کو جو ہے مد نظر رکھنا ضروری ہے، تاکہ ہر طرح کا جو پانی کا استعمال ہے، جو اسپیسیفک یوز ہے، جو کوالٹی انٹینڈڈ ہے، وہ اس کے مطابق جو ہے ہم اس کو انشور کر سکیں کہ اس مقصد کے لیے اس کوالٹی کا واٹر یا یہ پیرامیٹر جو ہے واٹر کے جو یہ ہم نے میئر کیے ہیں اس کے مطابق یہ فلاں یوز کے لیے ٹھیک ہے، یعنی یہ میونسپل یوز کے لیے ٹھیک ہے، یا یہ فشنگ کے لیے سوئٹیبل ہے، یا ایگریکلچرل یوز کے لیے جو ہے سوئٹیبل ہے۔ تو یہ ہم جو ہے واٹر کوالٹی پیرامیٹرز کی بیس پہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے ڈفرینٹ یعنی اسٹینڈرڈس ہیں، WHO کے اسٹینڈرڈس ہیں۔ اس کے علاوہ ہر کنٹری کے جو ہے وہ اپنے اسٹینڈرڈ ہیں، جس طرح ہمارے یہاں پہ نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی کنٹرول اسٹینڈرڈس ہیں، تو اس کے مطابق ہم نے جو ہے وہ چیک کرنا ہوتا ہے کوالٹی آف واٹر کو۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ میٹلز کی یعنی کتنی ہے اماؤنٹ، اس کے علاوہ pH کیا ہے واٹر کی، اس کا کلر کیسا ہے، آرڈر، اور اس طرح ہم جو ہے ڈفرینٹ پیرامیٹرز کو جو ہے وہ چیک کرتے ہیں واٹر کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں واٹر کوالٹی ڈیفائنز دوز فزیکل، کیمیکل اور بایولوجیکل کنڈیشنز بائی وچ وی کین ایویلیویٹ دا کوالٹی آف واٹر فار ان انٹینڈیڈ یوز۔ یعنی ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جو واٹر کے پولیوٹنٹس ہیں وہ فزیکل، کیمیکل یا بایولوجیکل ہو سکتے ہیں، تو ان کی ایک خاص مقدار جو ہے وہ ہم نے پانی کے اندر مینٹین کرنی ہوتی ہے، کیمیکلز کی، یا اسی طرح فزیکل یعنی پانی کا کلر جو ہے وہ گتلا نہ ہو، پانی کا کلر بالکل صاف ہو، کلر لیس ہو، اس طرح اس میں بیکٹیریا وغیرہ نہ ہو، وائرسز وغیرہ نہ ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو انشور کرنا جو ہے نا وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے واٹر کوالٹی۔ کسی بھی انٹینڈیڈ یوز کے لیے، اب وہ کمرشل یوز ہو سکتا ہے، وہ یعنی میونسپل یوز ہو سکتا ہے، جسے ہم ڈومیسٹک یوز بول رہے ہیں، یعنی گھروں میں جو پانی ہم استعمال کر رہے ہیں واشنگ کے لیے، نہانے کے لیے، پینے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے۔ تو اب جو ہیوی واٹر ہوتا ہے جس میں کاربونیٹس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس کو ہیوی واٹر ہم بولتے ہیں، تو وہ ڈرنکنگ کے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا۔ اس طرح اگر کسی پانی میں کلورین زیادہ ملی ہوئی ہے تو وہ بھی پینے کے لیے ہم یوز نہیں کر سکتے، جس طرح سوئمنگ پول پہ کلورین کو جو ہے ایز اے ڈس انفیکٹنٹ یوز کیا جاتا ہے۔ تو یعنی ہر انٹینڈیڈ یوز کے لیے علیحدہ سے ہم کوالٹی پیرامیٹرز جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے واٹر کے، اور ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے بات کی جائے کوالٹی پیرامیٹرز کی، تو کوالٹی پیرامیٹرز 3 طرح کے ہو سکتے ہیں: فزیکل، کیمیکل اینڈ بایولوجیکل پیرامیٹر، اینڈ اس کے علاوہ 4th ون آر دا ریڈیولوجیکل پیرامیٹر۔ سب سے پہلے بات کریں اگر فزیکل پیرامیٹرز کی، تو فزیکل پیرامیٹرز میں ہمارے پاس واٹر کا ٹیسٹ ہے، اس کا آرڈر ہے، ٹربیڈیٹی ہے، کنڈکٹیوٹی ہے،
इसके अलावा टोटल डिज़ॉल्व सॉलिड्स हैं, इसके अलावा कलर आ जाएगा हमारे पास, यानी टोटल डिज़ॉल्व सॉलिड्स में हमारे पास साल्ट्स की मिक़दार कितनी है। इस तरह हम देखते हैं कि ओशन वाटर में जो है वो साल्ट्स बहुत ज़्यादा डिज़ॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको ड्रिंकिंग के लिए जो है यूज़ नहीं कर सकते ओशन वाटर को। तो इसी वजह से क्योंकि उसमें TDS जो है ना बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा केमिकल पैरामीटर्स में हम वाटर की अल्कलिनिटी चेक करते हैं, उसकी pH चेक करते हैं, उसकी हार्डनेस चेक करते हैं। इसके अलावा हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसमें देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उसमें देखते हैं। इस तरह बैक्टीरियल पैरामीटर्स या जिन्हें हम बायोलॉजिकल पैरामीटर्स बोलते हैं, उसमें बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, प्रोटोजोआ है, हेलमिन्थ है, या रेडियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, अल्फ़ा एक्टिविटी या बीटा एक्टिविटी हम उसमें देखेंगे वाटर के अंदर। तो ये डिफरेंट क्वालिटी पैरामीटर्स हैं और उनकी डिफरेंट गाइडलाइंस हैं और उनकी एक ख़ास यानी अमाउंट बताई गई है कि इतनी मिनिमम अमाउंट या मैक्सिमम अमाउंट जो है अलाउड है इस चीज़ की। तो हमने वो मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट को जो है ना वो इंश्योर करना होता है। तो वो हम ट्रीटमेंट प्लांट्स जो लगाते हैं वाटर के, उसमें हम इन्हीं चीज़ों को जो है वो इन्हीं पैरामीटर्स की बेस पर फिर वाटर को ट्रीट करते हैं और उसके इंटेंडेड यूज़ के लिए वाटर को जो है वो रेडी किया जाता है। इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर में दो तरह की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, या तो वो सस्पेंडेड हो सकती हैं या डिसॉल्व। डिसॉल्व वो हैं जो पानी के साथ यानी हल हो जाती हैं और पानी में बिल्कुल मिक्स हो जाती हैं, जबकि सस्पेंडेड वो हैं जो पानी के अंदर मिक्स नहीं होती, जबकि उसी फार्म में जिस फार्म में उनको डाला जाता है उसी फार्म में रहते हैं। जैसे मट्टी है तो मट्टी कभी भी पानी के साथ जो है ना वो डिज़ॉल्व नहीं होगी, वो नीचे बैठ जाएगी। या प्लास्टिक है वो पानी के साथ कभी डिज़ॉल्व नहीं होगा, वो ऊपर तैरता रहेगा। तो इस तरह की इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ सस्पेंडेड हैं, कुछ डिज़ॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ हैं। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ आर दोज विच आर नॉट कम्प्लीटली सॉल्यूबल इन वाटर, यानी ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो पानी के अंदर जो है ना वो हल नहीं होती, यानी उसके साथ मिक्स नहीं होती, जिसमें बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, अल्जाई है, सॉइल्स हैं, सिल्स हैं, प्लास्टिक है। तो ये ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जो कभी भी वाटर के अंदर जो है ना वो सॉल्यूबल नहीं होंगी, यानी उसके साथ में उनका वो यानी मिक्स नहीं होंगी पानी के साथ, बिल्कुल उसके अंदर तहलील नहीं होंगी। तो इस तरह की जो इम्प्योरिटीज़ हैं इनको हम बोलेंगे सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। एंड डिज़ॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ वो हैं जो पानी के अंदर सॉल्यूबल हैं, यानी पानी के अंदर हल हो जाती हैं। जिस तरह साल्ट्स हैं, अगर आप पानी में नमक डाल के या चीनी डालेंगे तो उसको जब हम स्टर करते हैं तो वो उसके अंदर ही मिक्स हो जाता है, हमें यानी साल्ट नज़र नहीं आता, क्योंकि वो पानी के अंदर जो है वो सॉल्व हो चुका होता है, डिज़ॉल्व हो चुका होता है। तो इस तरह की जो इम्प्योरिटीज़ हैं जो पानी के अंदर जब एंटर हों तो वो पानी के साथ यानी मिक्स हो जाए, सॉल्यूबल हो जाए, तहलील हो जाए पानी के अंदर, तो इसको हम फिर बोलेंगे डिज़ॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़, जिसमें साल्ट्स हैं, आयरन के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, सल्फेट्स हैं, फ्लोराइड्स एक्सेट्रा, यानी जितने भी किस्म के साल्ट्स हैं या केमिकल्स हैं। इसके अलावा गैसेस लाइक ऑक्सीजन, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये सारी जो हैं ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जो डिज़ॉल्व हो जाती हैं पानी के अंदर कम्प्लीटली, और इसका जो है ना वो यानी बाद में ये इम्प्योरिटीज़ हमें वाटर के अंदर फिज़िकली नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन ये पानी के अंदर जो है वो मौजूद होती है। पोर्टेबल वाटर एंड कंटेमिनेटेड वाटर, यानी पोर्टेबल वाटर वो है जो कि ड्रिंकिंग के लिए सेफ़ है, प्लेजेंट टू टेस्ट एंड यूजेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। यानी डोमेस्टिक पर्पसेस में हमारे जो हाउस होल्ड के काम है डेली के या कंस्ट्रक्शन के लिए जो वाटर हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। एंड कंटेमिनेटेड वाटर वो है जो कि सेफ़ नहीं है ड्रिंकिंग के लिए, और जो डिजीज़ काजिंग पैथोजेन केमिकल्स या मेटल्स के साथ पोल्यूट हो चुका है, तो पोल्यूटेड वाटर को हम कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो बोलेंगे। पोर्टेबल वाटर वो हुआ जो सेफ़ है और जिसका टेस्ट बिल्कुल प्लेजेंट होगा, जिसमें किसी किस्म का कोई ऑर्डर ना हो, जिसका कलर जो है वो बिल्कुल कलरलेस हो। एंड इसी तरह जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर में हमें बैड ऑर्डर्स आएंगे और वो जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स काज करेगा, डिजीज़ जो है काज करेगा। तो इस तरह का पानी जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर होता है। Waterborne diseases. Diseases which are communicable via water are known as waterborne diseases.
یعنی ایسی بیماریاں جو پانی کے استعمال سے پھیلتی ہیں، یعنی کنٹیمنیٹ واٹر کے استعمال سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں وہ ہمارے پاس واٹر بورن ڈیزیزز ہیں، جس میں ہمارے پاس بیکٹیریا سے کوئی بیماری پھیل سکتی ہے، وائرسز سے پھیل سکتے ہیں، یا پروٹوزول انفیکشن ہوتے ہیں۔ اس کی سمپل جو سب سے بیسک ایگزامپل ہے وہ ڈائریا ہے یا کالرا ہے۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں جو پانی کی وجہ سے، یعنی گندا پانی استعمال کرنے سے، پولیوٹڈ واٹر یا کنٹیمنیٹڈ واٹر یوز کرنے سے یہ بیماریاں جو ہیں وہ پھیلتی ہیں۔ تو اس طرح کی بیماریاں جن کا پھیلنے کا ذریعہ پانی بنے، ان کو ہم بولیں گے واٹر بورن ڈیزیز۔ اب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی گائیڈ لائنز ہم دیکھیں گے ڈرنکنگ واٹر کے لیے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO، جو کہ انوائرمنٹل کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے یا واٹر کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے تو اس طرح کی جو ہے گائیڈ لائنز بناتے ہیں WHO۔ پرائمری ایم آف دیز گائیڈ لائنز فار ڈرنکنگ واٹر از ٹو پرووائڈ پبلک ہیلتھ پروٹیکشن اگینسٹ دیز۔ تو سب سے بیسک جو مقصد ہے نا ڈرنکنگ واٹر کے لیے گائیڈ لائنز بنانے کا، وہ یہی ہے کہ پانی پینے سے جو ہے نا کسی کو بھی ڈیزیز نہ ہو، یعنی صاف شفاف اور ایک دم ہیلدی واٹر جو ہے سب کو ملے، کسی طرح کے بھی ایجنٹ سے وہ کنٹیمنیٹڈ نہ ہو تاکہ وہ ڈیزیز کاز نہ کرے۔ آلسو ٹو پرووائڈ گائیڈ لائنس ٹو ڈیولپنگ کنٹریز ٹو ڈیولپ دیئر اون اسٹینڈرڈ۔ اور دوسرا WHO جو ہے وہ یعنی گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتا ہے ڈیولپنگ کنٹریز کو کہ وہ اپنے جو ہے اسٹینڈرڈ جو ہے ڈیولپ کریں، کیونکہ ہر علاقے کی ٹوپوگرافی ڈفرینٹ ہے، ہر علاقے کی گراؤنڈ واٹر کی کوالٹی ڈفرینٹ ہے، ہر علاقے کے ریورس کی کوالٹی ڈفرینٹ ہے۔ تو یعنی ٹوپوگرافی کے لحاظ سے، جیوگرافی کے لحاظ سے ہر ملک کا جو واٹر ہے اس کی اپنی کریکٹرسٹکس ہوں گی۔ تو WHO گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتا ہے تاکہ ہر کنٹری جو ہے وہ اپنے ماحول کے مطابق اینڈ اپنے کلائمیٹ اینڈ انوائرمنٹ اور جیوگرافی کے لحاظ سے وہ اپنے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں۔ ٹل ٹو ڈیٹ پاکستان ہیز ناٹ یٹ ڈیولپڈ اٹس اون نیشنل ڈرنکنگ واٹر کوالٹی اسٹینڈرڈ، یعنی ابھی تک پاکستان نے اپنے جو ہیں وہ اون کوالٹی اسٹینڈرڈ جو ہے ڈیولپ نہیں کی۔ ابھی تک ہم WHO کی گائیڈ لائنس کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس چیز میں ریسرچ کریں، اس چیز کو جو ہے وہ اویئرنیس پروڈیوس کریں اینڈ اپنے اسٹوڈنٹس میں، اپنے ریسرچ یعنی ٹیچرس میں، اس کے علاوہ اپنی پبلک میں، تاکہ ہم اپنی بھی جو ہے وہ گائیڈ لائن ہے ڈرنکنگ واٹر کے لحاظ سے، اس کی کوالٹی کے لحاظ سے وہ ڈیولپ ہم جو ہے وہ کر سکیں۔ مائکرو بایولوجیکل کوالٹی یعنی جو کہ بایولوجیکل پیرامیٹرس کے لحاظ سے، اٹ از دا موسٹ سینسٹیو پیرامیٹر فار ڈرنکنگ واٹر، یعنی بیکٹیریا یا وائرسز اگر ہوں گے پانی کے اندر تو آٹومیٹیکلی پانی جو ہے وہ ڈیزیز کازنگ ہوگا، کنٹیمنیٹڈ ہوگا۔ تو یہ سب سے سینسٹیو پیرامیٹر ہے، کیونکہ ہمیں یعنی یہ عام آنکھ سے تو نظر نہیں آتے، مائکروسکوپ کے ساتھ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی جگہ سے پانی نکال رہے ہیں تو ظاہر وہ صاف نظر آ رہا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بیکٹیریاز ہوں یا وائرسز ہوں، تو وہ واٹر جو ہے وہ کنٹیمنیٹ ہوگا۔ تو یہ بہت جو ہے نا، اس میں اب ہم جو اس کی کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے دیکھیں گے تو وہ ہم دو طرح کے انڈیکیٹرز یوز کرتے ہیں، یا ای کولی یا کولیفارم بیکٹیریا۔ تو ان دونوں کی جو ایک رینج ہے، جو ای کولی ہوتے ہیں وہ 5 ملین ٹو 500 ملین ہو سکتے ہیں پر گرام آف فیسس کے اندر، اینڈ کولیفارم جو ہے وہ 25,000 ٹو 50,000 پر گرام آف فیسس میں جو ہے یہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی جو کوالٹی گائیڈ لائن ہے WHO کی طرف سے کہ جو اگر ہم واٹر لے رہے ہیں اس کو ہم چیک کرتے ہیں تو 100 ml یونٹ کے اندر کوئی بھی ای کولی بیکٹیریا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اینڈ اس کے علاوہ کوئی بھی کولیفارم بیکٹیریا نہیں ہونا چاہیے پر 100 ملی لیٹر آف واٹر ان 95% آف سیمپل ایگزامنڈ ان اے ایئر۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم اوکیجنل سیمپل چیک کرتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ کوئی بھی یعنی کولیفارم بیکٹیریا جو ہے نہیں آنا چاہیے۔ اگر کسی میں آ بھی جاتا ہے تو جو
2 कंसेक्टिव सैंपल्स में जो है ना कभी नहीं आना चाहिए। अगर 2 कंसेक्टिव सैंपल्स में कोलीफॉर्म हमें ओकेजनल टेस्टिंग में नज़र आता है तो हम फिर उस वाटर को जो है, जो उसका सोर्स था, उसको हम जो है ट्रीट करने की यानी ज़रूरत है, क्योंकि वो कंटेमिनेटेड है, डिजीज़ कॉजिंग है, तो फिर हम उसके लिहाज से जो है उसकी ट्रीटमेंट जो है वो करेंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, हेल्थ सिग्निफिकेंस हैं इनकी, जिस तरह आर्सेनिक है, क्रोमियम है, साइनाइड है, फ्लोराइड है, लेड है, मर्करी है, निकल है। अब इनके इफ़ेक्ट्स बताए हुए हैं। कुछ इसमें से स्किन्स की प्रॉब्लम काज कर रहे हैं, किडनी डैमेज कर रहे हैं, या नर्वस सिस्टम को अटैक करते हैं, या डेंटल प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ जो है वो कार्सिनोजेनिक है यानी डिसीज़ काजिंग है, डेडली है हेल्थ के लिए। तो इन सब की भी गाइडलाइंस दी हुई है, जो मैक्सिमम है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा आर्सेनिक जो है वो नहीं होना चाहिए वाटर के अंदर। इसी तरह क्रोमियम या साइनाइड, हर एक की जो है गाइडलाइन WHO ने हमें जो है वो बताई हुई है, तो हमें इसको जो है वो फॉलो करना है। इसके अलावा एस्थेटिक क्वालिटी की बात की जाए तो पानी के अंदर जो है टर्बिडिटी वो है 5 होनी चाहिए, MTU यूनिट है इसका मेजर करने का। इसके अलावा टेस्ट एंड ऑर्डर जो है ये नहीं होना चाहिए, यानी पानी के अंदर किसी किस्म की कोई ऑर्डर नहीं होनी चाहिए, और उसमें किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं, टेस्टलेस तो ऑर्डरलेस जो है होना चाहिए। इसके अलावा टोटल डिज़ॉल्व सॉलिड जो है, सॉल्ट्स वगैरह इसके अंदर या सॉलिड्स, वो 1000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इस तरह सोडियम 200 मिलीग्राम पर लीटर, और इस तरह हार्डनेस जो है उसकी वो 500 मिलीग्राम पर लीटर है, CO3 इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। pH जो है वो 7 के करीब होनी चाहिए, यानी गाइडलाइन क्या है 6.5 से 8 पॉइंट के दरमियान की जो pH है वो आप रख सकते हैं। इसके अलावा कलर जो है वो 15 इसकी गाइडलाइन दी हुई है TC यूनिट्स में। इसके अलावा आयरन और सल्फेट की क्वांटिटीज़ भी इसमें बताई गई। टेस्ट एंड ऑर्डर, ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड ट्रेस। अब टेस्ट या ऑर्डर किस तरह आएगा कि अगर पानी के अंदर कोई ऑर्गेनिक मैटर्स डिजॉल्व हैं, या उसके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, या कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तो उसकी वजह से उसमें ऑर्डर जो है वो प्रोड्यूस होगा। इस तरह इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सोडियम, कॉपर, जिंक, तो वो इसके अंदर जो है टेस्ट या ऑर्डर को प्रोड्यूस करेंगे। जिस तरह पानी के अंदर नमक डालेंगे तो उसका टेस्ट जो है वो नमकीन हो जाएगा। इस तरह अगर उसमें शुगर डालेंगे तो स्वीट सा जो है टेस्ट आएगा पानी के अंदर। तो अब वो जो है वो यानी इस तरह, तो यानी अगर उसमें कोई हम उसकी जगह कोई कंटेमिनेटेड डाल देते हैं या कोई इस तरह, तो टेस्ट एंड ऑर्डर उसका जो है बैड हो जाता है, तो फिर वो हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे। तो पानी जो है वो टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस होना चाहिए डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। अगर कलर की बात की जाए तो कलर जो है पानी में वो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से आता है, या मेटल्स की वजह से आता है, या कोई हाईली कलर्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट है, यानी डाइंग प्रोसेस के दौरान, यानी अगर बात की जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो उसमें जो है वो कलर जब यूज़ करते हैं, हम डाइज यूज़ करते हैं रंगने के लिए कपड़ों को, तो वो जब एफ्लुएंट पानी में जाता है तो उसकी वजह से कलर जो है वो उसमें आना शुरू हो जाता है। उसके अलावा टर्बिडिटी की बात की जाए तो ये एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, और ये टर्बिडिटी बेसिकली सस्पेंडेड मैटर को जो है वो चेक करने का यूनिट है। हाई लेवल्स ऑफ टर्बिडिटी शील्ड्स एंड प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम द एक्शन ऑफ डिसइंफेक्शन। अगर किसी पानी की टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है, यानी नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट इसका मेजरिंग यूनिट है, NTU नेफ्लोमीटर हम यूज़ करते हैं टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए। अगर किसी वाटर की टर्बिडिटी ज़्यादा होगी, यानी उसमें सस्पेंडेड मैटर बहुत ज़्यादा है, तो वो बैक्टीरिया एंड वायरसेस को जो है शील्ड कर लेता है, और जब हम उसकी डिसइंफेक्शन करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया एंड जो वायरसेस मौजूद होते हैं वो डेड नहीं होते और पानी के अंदर मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से यानी वो खराबी प्रोड्यूस होती है और पानी जो है वो कंटेमिनेट हो जाता है। तो अगर हमारी जो डिज़ायरेबल लिमिट है टर्बिडिटी की जो अलाउड वो 5 NTU तक है, लेकिन जब हमने डिसइंफेक्शन अप्लाई करना होता है ट्रीटमेंट के दौरान, तो उस पानी की जिसकी हमने डिसइंफेक्शन करनी है उसकी टर्बिडिटी 1
NTU से जो है वो कम होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो फिर हमारा डिसइंफेक्शन का जो प्रोसेस है वो ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। तो टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स बेसिकली जो साल्ट्स हैं या इनऑर्गेनिक साल्ट्स या कुछ ऑर्गेनिक साल्ट्स हैं, तो उनको हम TDS बोलते हैं। इनको जो मेजर करने का यूनिट है वो मिलीग्राम पर लीटर है। तो ये जो है टाइम ऑफ द ईयर के लिहाज से डिफरेंट हो सकता है, जियोलॉजिकल कंडीशन के लिहाज से या क्लाइमेटिक वेस्ट डिस्चार्ज की वजह से जो है डिफरेंट हो सकता है। जो ब्रैकिश वाटर है इसमें TDS 1000 से 5000 मिलीग्राम पर लीटर होता है। सलीन वाटर में 5000 से 30,000, सी वाटर में 30,000 से 35,000 वाटर। इसी तरह जो रिवर एंड लेक्स है उसमें लेस दैन 200 मिलीग्राम पर लीटर, इरिगेशन वाटर में 1500 मिलीग्राम पर लीटर, और जो DW सप्लाई है हमारी वो 500 मिलीग्राम पर लीटर तक जो है वो मैक्स हो सकता है, या इससे कम ही होना चाहिए। इस तरह कंडक्टिविटी यानी मेजर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट पर टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, तो इसका यूनिट है UMHO पर सेंटीमीटर एंड यूसी यानी माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर। तो इसको जो है हम वो TDS के ज़रिए मेजर कर सकते हैं, यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। K यहाँ पर जो है वो लीस्ट काउंट है एक यानी इक्विपमेंट का जिसमें हमने TDS जो है वो मेजर करते हैं। तरह pH की बात की जाए तो इट इज़ द मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी पानी के अंदर कितने हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, तो वो हमारी pH कहलाएगी। अब इसमें पानी के अंदर pH के जो इफेक्ट करने के फैक्टर्स हैं उसमें बेड रॉक्स हैं या एसिड रेन्स हैं या वेस्ट वाटर का जो डिस्चार्ज है रिवर के अंदर वो उसकी pH को जो है वो चेंज कर देता है। pH स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH इंडिकेट्स अबाउट एसिडिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी पानी कितना एसिडिक है या अल्कलाइन है वो हमें pH के जरिए इंडिकेट होगा। pH इज़ द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन। जो हाइड्रोनियम आयन है इसका नेगेटिव लॉग अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हमें pH की वैल्यू जो है वो दे देता है। pH कैलकुलेशंस आर यूज्ड टू डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, यानी इस तरह है हमारे पास pH increases by 1, the concentration of hydronium ion decreases by 10। अगर pH हमारी एक बढ़े जिस तरह यहाँ पर है, यानी एक बड़ी है 1 से 2 हुई है, तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो 10 टाइम डिक्रीज़ कर रही है। तो अगर वो 1 बड़ी है तो ये यानी मज़ीद 10 टाइम्स जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। इस तरह यानी 10 फोल्ड से जो है ये डिक्रीज़ करती हैं या इंक्रीज़ करती हैं। डिटरमिन द pH ऑफ ए सोल्यूशन हैविंग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। तो इसको हम किस तरह करेंगे, हम इसका नेगेटिव लॉग अगर ले लें यानी माइनस लॉग 1 × 10⁻⁴, तो हमारे पास pH की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह का हम इसका एंटी लॉग ले लें तो हमारे पास जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन। तो आगे हार्डनेस की बात करें तो सॉल्ट्स ऑफ पॉलीवैलेंट कैटाइंस जो पानी के अंदर मौजूद हैं वो हार्डनेस क्रिएट करते हैं, यानी जिसको हम हैवी वाटर भी बोलते हैं, जिसमें टेम्परेरी हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस है और टोटल हार्डनेस है। तो इसको हम जो है वो देखते हैं कैल्शियम मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3 के लिहाज से, यानी इसमें आप पॉलीवैलेंट के टाइम हमारे पास कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, मैंगनीज, एलुमिनियम, कॉपर, बेरियम, जिंक एंड लेड एट्सेट्रा। तो हम इन सब को जो है देखते हैं CaCO3 की फॉर्म में, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में जो हमारे पास हार्डनेस होती है इसको हम टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं, जिस तरह ये है कैल्शियम या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। एंड जो हमारे पास क्लोरीन या नाइट्रेट या सल्फेट यानी क्लोराइड, नाइट्रेट या सल्फेट की फॉर्म में जो हमारे पास हार्डनेस मौजूद होती है, इनके जो आयंस हैं उन्हें हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस।
हार्डनेस को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है मिलीग्राम पर लीटर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 mass of hardness producing substance multiplied by chemical equivalent of CaCO3 divided by chemical equivalent of hardness producing substance। यानी मैश कितना है उसका जो अपनी क्वांटिटी है हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस की उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 के साथ और उसको डिवाइड कर देंगे केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस जो यानी केमिकल मॉलिक्यूलर वेट है हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस का उसके वेट के साथ। तो यहाँ पर हमने दो प्रॉब्लम्स जो है वो दी हुई हैं, इनको भी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कहीं डिस्कस करेंगे कि इसका सल्यूशन जो है वो किस तरह किया जा सकता है। तो हम यानी नेक्स्ट टाइम इसको हम जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो है जब करेंगे तो उसमें हम जो है ये आपको दिखाएंगे कि किस तरह जो है हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अमाउंट दी हुई है, यहाँ पर MF हमने निकालना है। तो अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो MF है वो है 100 हमारे पास। इसी तरह मैग्नीज यानी वो कितना निकलता है हमारे पास आई थिंक 162 है कैल्शियम का। फिर कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का कार्बन का एंड ऑक्सीजन का तो टोटल सम अप जो आता है वो 162 आता है। अब हमारे पास जो अमाउंट थी वो थी 16.2, उसको हमने जो है वो मल्टीप्लाई किया इसके साथ एंड डिवाइड कर दिया CaCO3 के वेट के साथ। यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, यहाँ पर MF रेशो निकालेंगे और उसके बाद इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 जो है वो कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर हमने जो है वो किया हुआ है यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 16 है। इसके अलावा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 146 है, सबका दिया हुआ है। और जो अमाउंट थी उसकी यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वाटर में जो एक्चुअल अमाउंट थी वो 26.4 ग्राम पर लीटर थी, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर मास इतना है। अब हमने MF रेशो निकालनी है, वो आती है हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 162। अब 100 डिवाइडेड बाय 162 हमारे पास आ जाता है 0.162 आई थिंक। इसको हम अभी देखते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 160 0.617 0.62 मल्टीप्लाई बाय 162 तो 100 डिवाइडेड बाय 162 को जब हम MF को मल्टीप्लाई करते हैं अमाउंट के साथ तो हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह अब इसमें जो है ये जो दो पहले हैं हमारे पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसका जो सम है वो हमारे पास होगा टेम्परेरी हार्डनेस एंड सल्फेट्स और क्लोराइड्स के जो आयंस हैं इनका जो हमारे पास यानी ये सम होगा 11.4 से लेके 13.51 तक। तो ये हमारे पास आएगी परमानेंट हार्डनेस। अगर हम इस सारे का सम कर लें तो वो हमारे पास आ जाएगी टोटल हार्डनेस। तो इस तरह हम जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह अल्कलिनिटी है कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड यानी पानी में क्या कैपेसिटी है इसको न्यूट्रलाइज करने की, ये उसकी अल्कलिनिटी कहलाएगी। यानी इसमें जो प्रेजेंस है कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स या हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम एंड पोटाशियम, तो ये हमारे पास जो है वो अल्कलिनिटी को कास्ट करते हैं। अल्कलिनिटी इज इक्वल टू हार्डनेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। फ्रेश वाटर के अंदर जो अल्कलिनिटी होनी चाहिए वो 30 से 130 मिलीग्राम पर लीटर है CaCO3 जो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। आयरन की बात की जाए, आयरन जो है वो मोस्ट प्लेंटीफुल रिसोर्स ऑन अर्थ है। बाय मैस जो है अर्थ का जो 35% मैस है वो आयरन पे बेस्ड है। हाई आयरन काजेज ब्राउन एंड येलो स्टेन्स ऑन लॉन्ड्री हाउस होल्ड फिक्सचर यानी आयरन जो है हमें पता है कि वो स्टेन्स कॉज करेगा, इसके अलावा हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी कॉज करता है।
आयरन बैक्टीरियाज प्रोड्यूस होते हैं जो हेल्थ के लिए जो है काफ़ी यानी ख़तरनाक हो सकता है। इसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट है यानी मैक्सिमम लिमिट इसकी वो 0.3 मिलीग्राम पर लीटर है। 1 लीटर पानी में 0.3 मिलीग्राम से ज़्यादा आयरन जो है वो मौजूद नहीं होना चाहिए। इसी तरह आर्सेनिक है। आर्सेनिक की बात की जाए तो ग्राउंड वाटर फॉर आर्सेनिफेरस बेड्स, अगर हम ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं किसी ऐसी जगह से जहाँ पर रॉक्स के अंदर आर्सेनिफेरस बेड है तो वहाँ पर जो है वो आर्सेनिक शामिल हो सकता है ग्राउंड वाटर की सप्लाई के अंदर, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट से हमारे पास आता है। आर्सेनिक की वजह से डर्माटोलॉजिकल लीजन्स प्रोड्यूस होते हैं या मस्कुलर वीकनेस प्रोड्यूस होती है, पैरालिसिस हो सकता है काज, एंड इसके अलावा स्किन एंड लंग्स कैंसर का बायस भी बन सकता है। तो इसकी भी एक्सेप्टेबल लिमिट हमें यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा हैवी मेटल्स में हमारे पास डिफरेंट मेटल्स हैं, तो ये भी जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पानी में जो है वो शामिल होती हैं। इसमें क्लोराइड्स हैं। क्लोराइड्स बेसिकली हम डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट डिपॉजिट्स की वजह से आते हैं, या एफ्लुएंट के डिस्चार्ज की वजह से, या इंट्रूजन ऑफ सी वाटर की वजह से। इसकी भी जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो 250 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नाइट्रेट्स हैं, ये भी जो है वो डिफरेंट यूजेस से पानी के अंदर शामिल हो सकते हैं। ये बिलो बेबी डिजीज़ जो है वो इन्फेंट्स में काज करते हैं, तो इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल लिमिट है वो 50 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरह फ्लोराइड्स हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स को काज करते हैं, डेंटल फ्लोरोसिस का बाइस बनते हैं, तो इनकी भी जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है वो 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की बात की जाए तो ओब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, वायरसेस हैं, तो ये भी उनका साइज़ यानी काफ़ी स्मॉलर है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो होने चाहिए वाटर के अंदर। तो ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं, क्योंकि ये सारे के सारे डिजीज़ कॉजिंग है कि इवन एक यूनिट भी इनका जो है वो डिजीज़ काज कर सकता है। तो ये बिल्कुल हमें इनको डिसइंफेक्ट करना है वाटर को, अगर हम उसको खास कर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं या यूटेंसिल्स वॉशिंग के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं उस वाटर को, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का तो बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए। अब ये था हमारा आज का लेक्चर जो हमने आज देखा। तो अब नेक्स्ट टाइम हम जो है वो बात करेंगे वाटर सप्लाई के ऊपर एंड डिमांड के ऊपर, और देखेंगे कि वाटर की सप्लाई एंड डिमांड एक दूसरे को किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं और कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि वाटर की डिमांड क्या है एंड वाटर की सप्लाई हमें क्या रखनी है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।